جاوید صاحب آپ اپنے فیملی میں آپ اپنے میں کیا چینج جب سے آپ نے ذیل سائنسز آئے سمدھا آپ نے کیے چینجز کیا ہے مثلا اپنی دنیا میں اور آپ کی فیملی کی؟ میری فیملی اور مجھ میں کافی چینجنگ آ چکی ہے، اور پہلے میں کانفیڈنٹ نہیں تھا میرے اندر اتنا کہ آپ ہے، زیادہ کانفیڈنس نہیں بہت ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہم کافی لوگوں کو اس طریقے سے بریف کرتے ہیں صحیح کہ میں خود ڈاکٹر ہوں ماشاءاللہ، بالکل آپ ایک نیچرل ڈاکٹر کی طرح، صحیح بات ہے، بالکل روحانی ڈاکٹر جسے کہہ سکتے ہیں یا الٹرنیٹیو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن گھر میں ایسا ہے ڈاکٹر کہ گھر میں اب یہ ہے کہ کسی بچوں کو یا لیڈیز کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا، ایک دوسرے کو خود ہی آرام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ اچھا پہلے آپ نے کیے کہ آپ کی وائف نے بھی کیے؟ میری وائف اور میں دونوں نے ایک ساتھ کیے۔ آپ نے پہلے آپ نے کیے سب دونوں ایک ساتھ کیے تھے؟ جی ساتھ کیے تھے، اس میں میری سسٹر ان لا بھی شامل تھیں 2 عدد، اچھا ماشاءاللہ، اور 1 عدد بھابھی شامل تھیں۔ صحیح میرا خیال ہے میرے گھر کی چلو اچھا وقت ٹھیک ہے، ورنہ خاندان کا جو ہے وہ ذیل سائنسز سے منسلک ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، اور سب کو رزلٹ مل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جی۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب کو ہم اجازت دیں گے، ایک چھوٹے سے بریک لیں گے۔ بریک آپ کو ہم ہمارے آپ پرومو دیکھیں، اور پرومو کے بعد ایک کالر ہے، ایک کال لے لیتے ہیں، کال کے بعد پھر ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ڈاکٹر عماد الدین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں بابر بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ سے۔ جی بابر، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحیح ڈاکٹر صاحب، میں نے تھوڑے 2-3 کوشچنس ہیں، ان کے ریگارڈنگ جو ہے نا میں کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا سمدھا میں ان چیزوں کا ٹریٹمنٹ ہے، پاسبلٹی ہے، اور کس ریشو تک ہے؟ کون سے مسائل کے جو ہم بتا رہے ہیں، جو تعلیمی مسائل ہے، سائیکولوجیکل چلڈرنس کے، اور جو ٹیچرز کے مسائل ہے، اس پہ بات کریں؟ اس کی بات اور آپ کر رہے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ ہے آپ کو؟ میں اس سے بات کرنا چاہوں گا ایک تو نیگیٹو کے حوالے سے کہ اس سے پازیٹیو کس طرح کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے ڈیفینیٹلی بالکل منفی رویہ، ماشاءاللہ بالکل صحیح، منفی رویہ کو ڈیفینیٹلی نیگیٹو کو جب تک پازیٹیو نہیں کیا جائے گا ہمارا انوائرمنٹ اس طرح پازیٹیو ہوگا۔ صحیح، بالکل صحیح فرما رہے، بالکل صحیح، ماشاءاللہ بڑے اچھی سجیشن دی ہے، تھینک یو، شکریہ جی۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے معید الدین صاحب، ہمارے ساتھ ہوں گے، جلدی واپس آتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر انشاءاللہ۔ Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all uncurable disease through natural way of healing, and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com, and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature. ویلکم بیک۔ ہمارے پاس ڈاکٹر معید الدین صاحب ہیں۔ ڈاکٹر معید صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، پچھلا بھی آتے رہے ہیں ہمارے یہاں پروگرامز میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، بہت عرصے بعد آپ سے
बात हो रही है, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज हमारे जो टॉपिक है, टॉपिक के मुताबिक हम बात करेंगे मसाइल बच्चों के और पढ़ने के लिखने की जो सुस्त रफ्तार होते हैं उनके, और मसाइल जो होती हैं, और टीचर्स के जो मसाइल है उस पर हम बात करें, और जिल साइंसेस पे बात करें, जिल साइंसेस और इस तरह की तालीमी बच्चों के मसाइल, माशरे की जो माशी मसाइल हैं फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब भी फरमाएँ और हनीफ साहब ने भी फरमाया कि मसाइल टीचर्स को भी है, हमको भी है और बच्चों को भी है। अब जो भी है, हम बच्चे भी हमारे हैं, टीचर्स भी हमसे है, और मसाइल भी हमसे ही है, तमाम चीज़ें। तो किस तरह इसका हल कैसा हम सोच सकते हैं? एक माशरा जो है, पूरा माशरा इसमें घिरा हुआ है, मसाइल का शिकार है। तो इस मसाइल का हल क्या कोई ऐसी कोई उम्मीद की किरण कोई है, कोई ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल? पहली बात तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने हमेशा जो है अपने स्टूडेंट को भी याद किया, और मुझे तो अमूमन मज़हब है आपने ख़ास स्टूडेंट में शामिल रखा, और मुसलसल आप जो है रास्ते में रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ रूहानी रब्ता भी रखते हैं, और इसके अलावा आपका लोगों के साथ वैसे भी टेलीफोन से और दीगर राब्ते भी रहते हैं। तो बहरहाल आपने मुझे याद किया तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह आप हमेशा बड़े ही माशरे के चुपते हुए और बड़े हसास किस्म के सवालात पर उमूमन बड़ी सैरासिल गुफ्तगू करते हैं, और हमारे जो दीगर सुनने वाले हैं और जो माशरे के पिसे हुए लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई ज़रूर हल भी तलाश करते हैं यहाँ पर, और उमूमन उन्हें इसका फ़ायदा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपके इससे न सिर्फ आपको दुआ देते हैं बल्कि बहुत सारे मामलात के अंदर उन तमाम हल को इस्तेमाल करके उन्हें वो मुश्किल और परेशानी से निजात भी मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉल होल्ड पे है, कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? कौन बात कर रही? जी क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? ताहिरा, मैंने लगभग 1 to 4 लेवल किया है। जी जी, समझा आपने किया 1 to 4 लेवल? जी माशाल्लाह। जी आप कोई तजुर्बात शेयर करना चाहती है? हाँ जी, जी, मुझे भी काफी फायदा हुआ है, और भी मैंने 2-3 को किया है, उनको भी फायदा है माशाल्लाह। मेरा बच्चा एक है 10-12 साल का, सही सही, उसको बुखार नहीं उतरा। जी जी, बुखार अल्लाह ताला। देखिए एक बात है कि मेडिकल को इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है? मेडिकल तो ठीक है, आप मेडिकल अपने जगह पे हैं, तो अल्लाह उनको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। समझाइलिंग साथ देते रहें, साथ डॉक्टर को भी रुजू करें, ज़रूरी है। बुखार किस वजह से है, कैसे, ये लाजमी है, ठीक है? अच्छा, एक डॉक्टर साहब मेरी भांजी है 2 साल की, वो बोलती नहीं है, और डॉक्टर कहते हैं कि वो सुन नहीं सकती इसलिए बोलती। जी आप प्लीज़ उनको हीलिंग दें, तो आप जो भी इलाज है वो उनको हीलिंग दें। हीलिंग ज़रूरी है, आप हीलिंग उनको दे दें। क्या वो ठीक हो सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आते हैं हम इस मसाइल पे, जिस तरह ये बता रही थी कि कैसे क्योर हो सकता है मसाइल, या ऐसे मसाइल भी है, तो कैसे पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। जहाँ तक आपने अभी सवाल के जवाब में बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट और दीगर चीज़ें अपनी जगह तो बड़ी ज़रूरी चीज़ों में से हैं, लेकिन इसके अलावा और भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे रास्ते रखे हुए हैं, और वो रास्ते ऐसे हैं कि जो उमूमन लोग उसके मुतवज्जो नहीं होते, लेकिन जब उसे तवज्जो करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बड़ा फाका होता है, और बल्कि उनकी जो मुश्किल और परेशानी होती है वो बड़ी आसानी के साथ और बड़ी ही जल्दी उससे उनको निजात मिल जाती है। इसमें एक समदा हीलिंग एनर्जी का तरीक़ाकार भी है। जब मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर या मुख्तलिफ मसाइल में उनके मुख्तलिफ लेवल्स को आजमाया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज बरामद होते हैं, और बड़े मुस्बत
मुस्तकिल और बड़े आसान तरीके से ये मसाइल हल हो जाते हैं और वो दोबारा से उनके अंदर से वो रिकरेंस जिसे कहते हैं या दोबारा उसकी वापसी नहीं हो रही होती। सही। ये सबसे अहम बात है इसमें, क्योंकि दीगर हम तरीके इलाज या दीगर तरीके हम जब इख्तियार कर रहे होते हैं उनसे ही मसाइल हल होते हैं माशरे के अंदर और हमारे तरीके जो है बिल्कुल। अच्छा, मैं ये चाह रहा, मैं जो अभी जो कॉलर थे मैंने इनसे इसलिए बताया कि आप अपने बच्चे को यानी मेडिकल को इग्नोर नहीं करने, ज़रूर चेकअप करवाएं, ज़रूर कुछ करवाएं, क्योंकि बात ये है कि समदा जो है वो आपकी हेल्प करते हैं दूसरी तरीकों में, और वो जो अगर उस तरीके से कोई बीमारी क्योर नहीं होते, समदासी करते हैं तो अल्लाह ताला ठीक करते हैं, तो साथ उसको भी आजमा लें। मकसद ये मैं बता सकता हूँ कि वसूख से कि ठीक है, समदासी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियां क्योर हो जाती है और क्रोनिक डिजीज ठीक होते हैं। आप दोनों डॉक्टर्स है, मेडिसिन से आप लोगों का सरोकार है, एलोपैथिक डॉक्टर्स है आप, तो इससे आपके सरोकार है। लेकिन देखिए, आप एक डॉक्टर है, मैं भी मेडिकल पढ़ा हूँ, लेकिन हम अगर खुद एक तजिया कर ले कि मिसाल के तौर पे समदा हमारे पास है, एक पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास, तो हम अगर मैं प्रैक्टिस में बैठा हूँ या प्रैक्टिस में कहीं बैठे प्रैक्टिस कर रहे, तो जाहिर है आप पहले मेडिसिन को देंगे तो साथ ही आप समदा भी देंगे, या उस मेडिसिन को जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहा था, फरमा रहा था डॉक्टर इस्माइल साहब की, वो मेडिसिन मैं एनर्जाइज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग फौरन ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेडिकल को साथ साथ के यही इस्तेमाल करना ज़रूरी है समदा हीलिंग करने जी सर, असल में लाजमी बनता है, जरूरी बनता है जी सर, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, और किसी भी जो तरीका इलाज है उसके खिलाफ नहीं है, उसकी जिद नहीं है, कोई किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉल होल्ड पे है, इस पे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं परवेज इकबाल बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी परवेज इकबाल साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो सबसे पहले उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस लाइन पर लगाया और अल्लाह ने हमें शफा दी। बिल्कुल, अल्लाह ने शफा दी है और हम सिर्फ एक सबब बने और बस। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी तवज्जो से हमें ये हमें समझा मिला और हमने इसको इस्तेमाल किया और हमने इसे शफा हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात तो ये है कि मुझे 3 तकलीफें थी। तकलीफ पहले नंबर पर थी कि मेरा मुंह पूरा नहीं था खुलता, तो दूसरे नंबर पर मुझे गुर्दों का मसला था, तीसरे नंबर पर मुझे नींद का मसला था, मुझे नींद नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले तकरीबन 1.5 से 1.5 सेंटीमीटर मुंह खुलता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मैंने समझा शुरू किया है, अब मेरा मुंह तकरीबन 2.5 सेंटी खुलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे इससे बड़ा फायदा हुआ है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छा, मुझे अभी 4-5 दिन में ये फर्क पड़ा है, तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी पड़ी है, इंशाअल्लाह ताला शफा और देगा आपकी तवज्जो से। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए जज्बात स्टूडेंट के और लोगों के तजुर्बात कितने ज़बरदस्त है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई और मेडिकली उनके जो आइलिश जो इससे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे कि ये यानी जो असाबी रिश्ते थे काम नहीं कर रहे थे, तो ये डल से थे बिल्कुल, वो यानी आई ओपन नहीं हो रहे थे, बंद होते हमेशा। मेडिकली ये बिल्कुल ये था कि ये पॉसिबल नहीं है, इसकी ये जगह बेस हो गए और ये ख़त्म है, ये नर्व्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आइज खुल नहीं सकते, वैसा हाथ से यूँ खोल लेते। अच्छा, उन्होंने फिर इधर से एक चीज़ें दिए हुए थे कि उसको यूँ करते हुए यूँ, तो उससे भी फिर उसको इतना तकलीफ होता, तो वो पॉसिबल नहीं थे वो वापस। मैंने सिर्फ ये 2 उंगली यूँ लगाई
इस तरह के, बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्यारी सी बच्ची थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा "ए अल्लाह इनको शिफा दे दे। शिफा दे"। सही। तो वो मैंने सिर्फ ऐसा किया और अल्लाह ने उनको एकदम आंखें खोल दिए और वो फिर अपने अम्मी को गले लगाए हैं। तो इस तरह के अच्छा, वो उनके नए नए मंगनी हुई थे अभी अभी, तो जो लड़का था परेशान हुआ था, जब ऐसे हो गए तो हो सकता था उनको कोई तलाक का कोई प्रॉब्लम शायद वो से आ सकते थे, तो ये अल्लाह ने ठीक कर दिए।